Hello everyone, welcome to our class trigonometry. Okay, in our previous classes, in my two previous videos, we have discussed trigonometry up to exercise 7.2, question number 6. It is solved there. Now today we are going to start with question number 7. But before solving question number 7, you have to learn few more identities or say corollaries, experiments on or modifications of using those identities. Okay, so you have seen these identities are written on the board. Now we have already proved these identities in our previous videos. You can go through, refer to those videos, and after that you can understand this one very easily. Okay, so let us begin with those identities. What can we do more with these identities? Let's see, let us understand today. This is sin A plus B equals to sin A into cos B plus cos A into sin B. Then sin A minus B is equals to sin A into cos B minus cos A into sin B. Then cos A plus B is equals to cos A cos B minus sin A sin B. Similar way, cos A minus B is equals to cos A cos B plus sin A sin B. So very simple identities. These all identities are proved in previous video. You can go through. Now, what more can be done with these identities? Let's see. This is going to be interesting one. First, you understand the first part. After that, you try to do yourself. You can do it. So let's see what can be done. If we multiply these two parts, then what will you get? Sin A plus B into sin A minus B. Sin A plus B into sin A minus B. Sometimes it will be given in the question and its value we need to write. We cannot find out the value again and again to in a particular question. So we have to obtain the value previously and we will use these identities, these modifications or these corollaries or experiments with these identities as sub-identities or identities. Let's see how to do this. We have already sin A plus B identity, that is sin A cos B plus cos A sin B. So we will write sin A cos B plus cos A sin B. ठीक है, इससे पहले भी क्लास में हमने पढ़ा था कि sin A minus B equals to क्या होता है. sin A minus B हमारे पास है, ये क्या है, sin A cos B minus cos A sin B. अभी ध्यान रहे, it is of the form sin A cos B plus cos A sin B, that means A plus B, and if you consider this portion as A, this portion as B, then it will be A plus B, and this is A minus B. So A plus B into A minus B, all of you know it is A square minus B square. Yes, it will be sin A cos B whole square minus cos A sin B whole square. जैसा कि आप सभी को पता है कि a plus b whole square is equals to और a into b whole square को हम कैसे लिख सकते हैं? We can write it as a square into b square. So here also it is of the same form. और याद रहे sin a whole square, इसका मीनिंग होता है sin square a, sin square a. Okay, meaning is same. So इसको हम लिख सकते हैं, it is of the form a into b whole square. So a square into b square we can write it. Sin square A into cos square B. Alright, similar way, if you remove the bracket, then you can write it as cos square A into sin square B. So hope you have understood. After this, what can be done? Let us remove cos. All cos we are going to convert it into sin. How to convert cos into sin? As you know, the basic identity that you have already learned in general mathematics also. What was that identity? That is sin square A plus cos square A is equals to 1. You have already learned. Then in place of cos square A, you can write, in place of cos square A, you can write 1 minus sin square A. Is that okay? Similar way, in place of sin square A, what can be replaced or what can be written? In place of sin square A, if you shift this cos square A to the other side, then it will be 1 minus cos square
A. Is that okay? So applying the same in this part, you can convert all sine into cos or all cos into sine. Anyone you can do. Let us first convert cos into sine. Then what will come? Let's see. Let it be sine square A. Then cos square B can be written as cos square A is equals to 1 minus sine square A. Then cos square B will also be 1 minus sine square B. Is it? So you can write here 1 minus sine square B minus this side look at it is cos square A. So let us convert cos square to sine square. So how do you write 1 minus sine square A into sine square B is then let it be sine square B. Let it be. After that, let us multiply with sine square A and sine square B. If you multiply it with sine square A and sine square B, what will you get? Sine square A into 1 is sine square A minus sine square A into sine square B, sine square A into sine square B, then minus 1 into sine square B, 1 into sine square B is sine square minus sine square B, minus into minus is plus, sine square A into sine square B, sine square A into sine square B. Hope you have understood up to here. Now look at this is negative sine square A sine square B and this is positive sine square A sine square B. If you solve it, then they will get cancelled and finally you will get sine square A minus sine square B. This can be applied as, this can be used as one identity, that is sine A plus B into sine A minus B, sine A plus B into sine A minus B is equals to, you can write sine square A minus sine square B. Okay, so if you convert sine into cos, then again this can be written as, if you convert all sine into cos, then you can write it as, see, we will go with the last line. The last line, if you convert sine square A into cos, then you can write it as 1 minus cos square A, then minus, if you convert the sine square B into cos, then you can write it as, आप लिख सकते हो इसको 1 minus cos square B. अभी आप इसको ब्रैकेट रिमूव करो, जैसे ही आप ब्रैकेट को रिमूव करते हो देखो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास आंसर रह जाएगा cos square B minus cos square A. ओके, cos square B minus cos square A जो कि आपका आंसर रह जाएगा. So if once you remove the bracket, this one and negative 1 and positive 1 will get cancelled. It will give you 0. Then minus cos square A plus cos square B, that means cos square B minus cos square A आपको मिलेगा. You can write it as identity. You can use it as identity. So look at now what you have obtained. That science beginning is, we start with sine A plus B into sine A minus B, and after solving it we get two lines, that is the last line you see within the box, that is sine square A minus sine square B, and the other one is cos square B minus cos square A. That means sine A plus B into sine A minus B can be written as sine square A minus sine square B or cos square B minus cos square A. Okay, the similar way, if we multiply cos A plus B and cos A minus B, then also we will obtain such results. Not exactly this result, some other result it may give. Let's see what these are. So here I have added one line, look at sine A plus B into sine A minus B is equals to sine square A minus sine square B, or it can be equals to cos square B minus cos square A. So whenever it is required, we will use this direct as the identity. Alright, similar way, if you multiply these two parts, that means cos A plus B into cos A minus B, then also you will obtain one result. What will be that result? You can perform the multiplication yourself and check the result. I will write the result directly, okay? Cos A plus B into cos A minus B. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको
कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे और वो रिजल्ट्स क्या है हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इसी तरह जैसे कि हमने sin a plus b into sin a minus b को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट निकाला था, ठीक उसी तरह आपको भी ये रिजल्ट निकालने हैं। खुद करो और निकल जाएगा वेरी इजीली। सो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट होता है cos square a minus sin square b, cos square a minus sin square b, या फिर cos square b माइनस sin square a। ये दो रिजल्ट्स निकल सकते हैं इससे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, cos a plus b is equals to cos a plus b into cos a minus b can be written as cos square a minus sin square b or cos square b minus sin square a. Okay, this will also be used as identity whenever required, ठीक है। तो इनको जानना बहुत ही जरूरी था, तो हमें इसको यूज करना है कहीं में आगे जाके। और भी ज्यादा आइडेंटिटीज मिलेंगे आपको अगर आप इफ यू परफॉर्म एडिशन अमंग देम, देन आल्सो यू आर गोइंग टू गेट सम मोर आइडेंटिटीज लाइक इफ यू आर गोइंग टू ऐड देम देन इट विल बी sin a plus b plus sin a minus b. If you are adding them, then what will you get? Let's see. Sin a plus b आपके पास ये है, देखो sin a cos b plus cos a sin b, ये sin a plus b का आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। और इसके साथ हमें ऐड करना है जिसका sin a minus b का आइडेंटिटी। So how do you add this? प्लस sin a minus b हमारे पास ये है ही पहले से, तो हमने इसको ऐड करना है यहाँ पे sin a cos b माइनस cos a sin b बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। देखो आप यहाँ पे sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये जो cos a sin b पार्ट है हमारे पास टू टाइम्स है, और एक बार पॉजिटिव है and next time this is negative, so they will get cancelled, and finally हमारे पास ये जो पार्ट है sin a cos b दोनों ही पॉजिटिव है और टू टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sin a cos b, ठीक है। तो sin a plus b plus sin a minus b can be written as 2 sin a cos b। ठीक उसी तरह अगर हम cos को ऐड करते हैं तो ये भी एक हमारा आइडेंटिटी हो गया, हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। चलो ये हो गया sin a plus b plus sin a minus b can be written as क्या 2 sin a cos b। देखो आइडेंटिटी मैं इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ अगर आप लोग कंफर्टेबल हो, अगर आइडेंटिटी आपको कोई दिक्कत नहीं करती, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती आइडेंटिटी कोई भी त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति के जो एक्सरसाइजेस मिलेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखते ही आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा कैसे करना है। तो इसीलिए आइडेंटिटी जो पार्ट है त्रिकोणमिति में उसको आपको खास करके ध्यान देना है, ठीक है। वो क्यों ना ASTC से शुरू हो या फिर कोई भी ऐसा वैसा आइडेंटिटी हो, पहले आपको आइडेंटिटी समझना है, आइडेंटिटी को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, बारीकी से आइडेंटिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स जो है एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह वगैरह आपको करते रहना है। तो बहुत सारे रिजल्ट्स जो मिलेंगे आपको, तो क्वेश्चंस में क्या होता है कि उन रिजल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है टू सोल्व दोस क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द आइडेंटिटीज प्रॉपर्ली। ओके, कभी कभी कोई भी आइडेंटिटी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि अभी यही वाला जो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि sin a plus b into sin a minus b equals to sin square a minus sin square b। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक आ गया तो प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, मान लो कि प्रूव दैट sin a plus b into sin a minus b equals to sin square a minus sin square b। तो आपको करना क्या है, जो कि हमने पहले ही बताया था कैसे करना है, ठीक है। या फिर प्रूव दैट ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू cos square b minus cos square a। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसीलिए आइडेंटिटीज को पढ़ना बहुत ही और सोल्व करना और इनको बारीकी से याद करना बहुत ही, याद मतलब क्या है, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया sin a plus b plus sin a minus b का आइडेंटिटी, ये क्या होगा 2 times sin a cos b।
तो बेसिक जो है ये चार आइडेंटिटीज यहाँ पे है। इन्हीं चार आइडेंटिटीज को हमने इस्तेमाल किए हैं और एक बार मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद हम एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी मिलेंगे हमको। तो ऐसे ही हमें और सारे कुछ रिजल्ट्स इसके मिलेंगे और जिनको हम आइडेंटिटीज के तौर पे ही आगे जाके यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का। ठीक उसी तरह अगर हम cos a प्लस बी इंटू cos a प्लस cos a माइनस बी करें तो क्या मिलेगा हमें देखते हैं। तो हम इसको ना ही करें तो बेहतर होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ऊपर अगर देख करके cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ध्यान से देखो cos a प्लस बी हमारे पास क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर इनको आप ऐड करते हो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b तो ये भी ऐड होंगे। ये जैसे ही ऐड होंगे ये पार्ट जो है सेम है तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव है सेम है तो ये कट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, 2 टाइम्स cos a cos b। ठीक है, सही है। उसके बाद इसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको और सारे कुछ रिजल्ट्स जो है मिलने वाले हैं, जैसे कि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा, देखो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी तो आपको क्या मिलेगा, इससे ये वाला जो पार्ट है माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये जैसे नेगेटिव बनेगा ऊपर वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, और ये जो पॉजिटिव बन जाएगा तो ये सेम है तो ऐड हो जाएंगे 2 टाइम्स cos a sin b। देखो डिफरेंस कहां पे है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इक्वल्स टू 2 टाइम्स sin a cos b, और इसी का जो माइनस करोगे sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b 2 टाइम्स cos a sin b। समझ आई बात। तो ठीक उसी तरह और भी एक है जो कि है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। तो ये भी सेम है, यहां पे जो है उसी का उल्टा आएगा। उल्टा मतलब क्या आएगा, यहां पे अगर cos a cos b है तो यहां पे sin a sin b आ जाएंगे। तो कैसे होगा देखते हैं हम। cos a प्लस बी, हमारे पास cos a प्लस बी ये है, cos a cos b माइनस sin a sin b, और यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस करना है cos a माइनस b को। तो करें कैसे, cos a माइनस b को माइनस करना है, ठीक है। तो ये वाला नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव पार्ट, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेम है कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव बन जाएगा तो 2 टाइम्स नेगेटिव हो गया, तो माइनस 2 टाइम्स sin a sin b। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी आइडेंटिटी एक बन गया। तो हमने ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड एडिशन, परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन द गिवन आइडेंटिटीज। ठीक है, अभी इनको बाद में फिर से मॉडिफाई किया गया है और उनको भी हमने क्या करना है, उसको आइडेंटिटी के तौर पे जो है इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी को बहुत ही मजा आएगा, मजा आने वाला है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, हम मान लेते हैं साइन जो a प्लस बी है हमारे पास, a प्लस बी जो है इसको हम मान लेते हैं c, लेट a प्लस बी बी c, और जो a माइनस बी है हमारे पास इसको हम d मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करें, लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू c, इसको हमने c बना दिया, a प्लस बी को हमने c बनाया। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। ठीक उसी तरह a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम b बनाते हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, चलो अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे हम ऐड करेंगे, जैसे कि इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, b कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स a इज इक्वल्स टू c प्लस d। ठीक है, तो ओनली a क्या होगा आपके पास, c प्लस d बाय 2। ठीक है, और इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों को तो क्या होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों को 1 माइनस 2 अगर करते हो तो क्या होगा, इससे ये वाला जो पार्ट है माइनस करना है तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स b इक्वल्स टू
a plus b minus a plus b. 2 times b equals to c minus d. 2 times b equals to c minus d. तो यहां से आपको b equals to क्या मिलने वाला है, c minus d by 2. ठीक है, ठीक है, सबको समझ आ गया यहां तक? अच्छा, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना है और इसको अगर आप ऐसा आपको लगता है कि लिखना जरूरी है तो लिख लेना है. इसके बाद जो है हमें ऊपर की जो चीजें हैं अभी नहीं चाहिए, तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं. पर आपको जो है ये प्रैक्टिस करना है बार बार, और इसको जो है इसके साथ कंफर्टेबल आपको बनना है. फॉर्मूला आइडेंटिटी के साथ अगर आप कंफर्टेबल होते हो ट्रिगोनोमेट्री में, तो आपको कोई भी चीज नहीं रुका सकती. आप बहुत ही इजीली इसको सोल्व कर पाओगे. ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे आगे जाके इसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे. तो हमारे पास ये जो वाला आइडेंटिटी है sin a plus b plus sin a minus b, तो इसको हम अप्लाई करने वाले हैं. इसी के ऊपर हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करने वाले हैं. तो हमारे पास a plus b मतलब क्या है, c है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, sin c. तो हमारा बन जाता है नया एक आइडेंटिटी sin c प्लस a minus b मतलब क्या है, a minus b मतलब d है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin d. So we will write here sin d. Then we have the identity as 2 times sin a cos b. 2 times sin a cos b. Now we have the value of a as well as the value of b. So let us apply the value of a and b here. 2 is here. 2 so हमारे पास पहले से ही है sin a, sin a. a क्या है हमारे पास, हमने निकाला था a equals to c plus d by 2. So let us replace a by c plus d by 2. ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं c plus d by 2 से. ठीक उसी तरह cos b है, तो b हमारे पास क्या है, c minus d by 2. Let us replace it by into cos c minus d by 2. Let us replace it. और ये बन गया हमारा नया फॉर्मूला, जैसे कि sin c plus sin d equals to 2 times sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. ठीक है, तो ये बिल्कुल नया एक आप लोगों के लिए आइडेंटिटी बन गया. और यही जो चीज है हम अगर इसको यहां पे इस्तेमाल करेंगे, यहां पे यूज करते हैं, तो क्या बनेगा देखते हैं इसको. ठीक है, तो ये आपका बनेगा cos a plus b का मतलब हो गया हमारा, a plus b का मतलब हो गया c, तो हम इसको लिखेंगे cos c प्लस cos a minus b हमारे पास कितना है, d है, so it will be cos d. So cos c plus cos d is equals to 2 times cos a, what is a here, c plus d by 2, c plus d by 2, and b, what is b here, cos b, what is b here, c minus d by 2. ये बन गया नया आइडेंटिटी आप लोगों के लिए, that is cos c plus cos d is equals to 2 times cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. ओके, ठीक उसी तरह अगर आप इसको थर्ड आइडेंटिटी में यहां पे अगर अप्लाई करते हो, तो क्या बनेगा, sin a plus b, sin मतलब a plus b मतलब c है, तो sin c माइनस है यहां पे हमारे पास, और sin d, तो बनेगा क्या, 2 times cos a का मतलब है c plus d by 2, so 2 times cos c plus d by 2 into, ये था हमारे पास ये वाला sin b का मतलब होगा sin c minus d by 2, sin c minus d by 2. ओके, यहां पे जो लास्ट है, इतना कर दिया, लास्ट भी कर ही देते हैं. sin a plus b मतलब c हो गया, सॉरी ये cos c हो गया, माइनस cos a minus b का मतलब है d, तो cos d बन गया आपके पास. तो इसको अप्लाई करते हैं, कैसा होगा, इसका आइडेंटिटी क्या था, माइनस 2 टाइम्स sin a sin b माइनस 2 टाइम्स sin सिर्फ a का वैल्यू कितना है, c plus d by 2, c plus d by 2 into sin b. sin b का मतलब कितना है, ये वाला sin b मतलब c minus d by 2.
अगर आपको यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है तो अगर आप यहाँ पे प्लस लिखते हो तो ये जो है ऑल्टर हो जाएगा, d माइनस सी बन जाएगा, ठीक है। वो भी आप यूज कर सकते हो कहीं कहीं पे, जैसे कि जैसा डिमांड होगा क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक उसी तरह हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे कि हम इसको लिख ही देते हैं यहाँ पे, और आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए तो आप ये 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, ये बन जाएगा c माइनस डी पहले था तो इसका जो निगेटिव साइन रिमूव करते ही वो वाला ऑल्टर बन जाएगा, ठीक है, d माइनस सी बाई 2। तो इसके जो है हमारे पास ये हो सकता है या फिर ये फॉर्म हो सकता है, दोनों ही फॉर्म सही है। दोनों ही फॉर्म क्वेश्चन का जैसा डिमांड रहेगा उसी डिमांड के अनुसार, डिमांड के मुताबिक हमें इसको इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आइडेंटिटीज एंड हाउ टू ऑब्टेन न्यू आइडेंटिटीज विद दोस 4 बेसिक आइडेंटिटीज, राइट। इसके बाद जो है हम जाते हैं एक्सरसाइज में, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। तो वहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। So let's see now, this is a very simple question. आपको समझना है इसको, और डायरेक्ट जो है sin a minus b का आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा कर लिया आंसर तो निकलेगा जरूर, पर जो है वो थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, इसको हम शुरू करते हैं लेफ्ट साइड का। इस क्वेश्चन का जो है sin square a plus sin square a minus b, we have minus 2 times sin a cos b into sin a minus b is equals to, हमें क्या शो करना है, sin square b। तो इट्स वेरी सिंपल वन। कैसे करें देखते हैं इसको। पहले लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं sin square a plus sin square a minus b minus 2 times sin a cos b into sin a minus b, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। हमें राइट हैंड साइड में क्या शो करना है, sin square b। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करोगे। इसको कुछ नहीं करना है, लिमिट प्लस यहां पे देखो sin स्क्वायर a माइनस b है, sin a माइनस b into sin a माइनस b 2 टाइम्स है ना। यहां पे भी sin a माइनस b है, so we can take sin a माइनस b is common. If we do so, then sin a माइनस b, आप अगर इसको कॉमन लेते हो यहां से, तो since there is a square, एक आपने कॉमन ले लिया तो और एक रह जाएगा यहां पे sin a माइनस b, ठीक है। इसके बाद माइनस 2 टाइम्स sin a cos b, और ये जो पार्ट था sin a माइनस b, इट इज टेकन कॉमन, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अभी जो है क्या करने वाले हैं, देखो sin स्क्वायर a प्लस sin a माइनस b है, ठीक है। यहां तक सही है। अभी ये जो वाला पार्ट है sin a माइनस b, तो हम इसका आइडेंटिटी जो था, याद है ना, हाँ, वही जो आइडेंटिटी है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे। तो sin a माइनस b मतलब क्या था, sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। हम लिख देते हैं sin a cos b माइनस cos a sin b माइनस, ठीक है। जो है वो ही है, रह जाएगा वो, तो वहां पे नहीं हटेगा तो नहीं आएगा, ये कॉमन नहीं करेगा, तो हम इसको यहां पे लिखते हैं sin a cos b, ठीक है, सही है। तो देखो यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स sin a cos b और यहाँ पे प्लस sin a cos b है, तो एक माइनस हो जाएगा। चलो क्या होगा देखते हैं। ये जो sin स्क्वायर a रह गया प्लस sin a माइनस b, चलो रह गया ये भी। इससे ये वाला माइनस करो तो क्या बनेगा, माइनस sin a cos b। So already there is sin cos a sin b, so minus cos a sin b is already there. Now there is minus. Can we take this negative common? Yes, we can take this minus common outside. We can take this minus outside. अगर outside लाएं इसको तो कहाँ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो रखा है, ये वाला इधर आ जाएगा और ये जो होगा क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, समझ आ रहा है आप लोगों को। ये जो प्लस है ये माइनस बनेगा, किस लिए बनेगा, ये माइनस हमने इसको कॉमन बाहर ले आया, इसको जैसे ही बाहर आया तो ये बाहर आते ही इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया sin a माइनस b। ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो क्या बनेगा, sin a
cos b प्लस cos a। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? बप्पी जी का गाना याद आ रहा है? sin a cos b प्लस cos a sin b क्या था? यस, sin a प्लस b था ना? चलो अप्लाई करते हैं इसको। ये हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब यस sin a प्लस b। अब कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है आप लोगों को? देखो ध्यान से यहां से यहां तक कुछ याद है? अभी अभी जो हमने लिखा था आइडेंटिटीज के बारे में हमने जो बात की थोड़ी देर पहले, तो क्या हो गया ये sin a माइनस b इंटू sin a प्लस b। ये जो है इसका जो वैल्यू बनता है वो कितना था? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। इसके दो वैल्यूज थे, तो हमें जो कि यहाँ पे निकालना है, राइट हैंड साइड में साइन है तो हम इसका कॉस का वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम साइन का ही वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि हमें जो है राइट हैंड साइड में साइन निकालना है। तो यही जो क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड में कॉस भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। माइनस ये जो था फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ब्रैकेट को रिमूव करो वही, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर b। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गया और रह गया क्या आपका? साइन स्क्वायर b। तो है ये राइट हैंड साइड? यस ऑफ कोर्स ये राइट हैंड साइड है, और हमारे पास राइट हैंड साइड भी साइन स्क्वायर b ही है, तो हमें राइट हैंड साइड मिल गया। ये रहा आपका सोल्यूशन, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। और ठीक उसी तरह 7 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम है। मैं थोड़ा इसको हिंट दे दूं आप लोगों को, तो आप लोग इसको कर सकोगे आई थिंक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी हमने लिख लिया। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a माइनस b माइनस 2 टाइम्स cos a माइनस b इंटू cos a इंटू cos b इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a आपको निकालना है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे जो कि पिछली बार किया था। यहाँ पे cos a माइनस b है और यहाँ पे भी cos a माइनस b है। वी कैन टेक कॉमन, ठीक है। cos a माइनस b को आप कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा? एक बार cos a माइनस b माइनस 2 टाइम्स cos a cos b रह जाएगा। तो cos a माइनस b जो कि ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उसका फॉर्मूला जो है cos a cos b प्लस sin a sin b, उसको अप्लाई करना है। उसके बाद प्लस माइनस जो भी बनता है उसके बाद ब्रैकेट को रिमूव करना है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपका आंसर साइन स्क्वायर a निकल जाएगा। तो आप इसको ट्राई करो खुद को, ठीक है। तो हम